ओके, सो ये जो पेज मेरे पास ओपन होकर आया, दिस इज कॉल्ड दी वेब पेज। ओके, फिर इसको मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे मैं क्लिक करूंगी अनदर पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, तो वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट क्या होती है, इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, HTML पेज हम लोग खुद डिजाइन करते हैं, मतलब ये जो पेज है किसी ने डिजाइन किया होगा, आप लोग भी डिजाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं, थोड़ा मतलब छोटा, मतलब सिंपल सा। ठीक है, इसमें तो बहुत सारे भी ये आइकॉन्स आ रहे हैं, फोटोज हैं। ओके, समझ में आ रहा है। सो वेब पेज क्या होगा, जो भी हम जैसे गूगल डालते हैं या कोई भी वेबसाइट डालते हैं, जो पेज ओपन होता है दैट इज कॉल्ड दी वेब पेज। समझ में आया व्हाट इज वेब पेज? Yes, ma'am. ओके, यस मैम। ठीक है, अब उस वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड दी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Okay, the language which we use to design the web pages is called the hypertext markup language. Okay, so थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं HTML होता क्या है। क्योंकि HTML नहीं पता चलेगा उससे पहले CSS कैसे करोगे। HTML for class intro HTML इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, intro HTML। कल ही देखा था हमने, कहाँ गया वो। Ma'am, sound is very low. साउंड आ ही नहीं रहा होगा, रुको वेट, पहले मैं देख लूं। ओके, okay, is this audible? Good morning, students. In today's video, I'm going to Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell you about HTML. Chapter 8, page number 95. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is mainly used to design web pages. So, after completing this chapter, you will able to create your own web pages. You will know how to add pictures, videos, text on a web page. To create web page, you will require Notepad or any text editor, and to view the web pages, you will require a browser. A browser is a program which can be used to view HTML pages. It can be Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, etc. So let's come to HTML. Hypertext Markup Language. It is simply piece of text which contain links to other text. Whereas markup language is a way to writing style and layout information within a text document. So hypertext means linking between different documents, and markup means the style, the writing style or some format to writing the text on a document. HTML is an example of markup languages.
HTML is simple scripting language, mainly used for developing web pages. It is easy to learn and simple to understand. Remember one point, HTML is a scripting language, not a programming language. HTML is not a programming language. It is a scripting language. HTML document is a plain text file that contains text and HTML text. This document, when viewed in a browser, display as a web page. Before writing HTML codes, you have to remember some points. There, HTML is not a programming language, but it is a markup language. It creates simple text file using any text editor. It consists of markup text. It saves time with extent. While you are saving the HTML file, you have to save by extension .htm or .html. It is not an case-sensitive language. In HTML, capital letter, small letter, and combination of capital and small letter are similar. HTML editor. Mainly text editor are used to create HTML documents. You can use any text editor to create an HTML document. Mainly Notepad, Notepad++, Sublime, and Visual Studio. This text editor you can use to create an HTML document. Now I am going to show you how to create a simple HTML file using Sublime Text Editor. First, open the text editor. Spider-Man. The text editor will look like this. Create a new file. Save the file as select the location, give any name, suppose my HTML. .html. Save it. Now write the simple text. Write HTML head title my page, close title, close head, body. Here also write my page only. Dot, body close, head close. So this is the basic page to create an HTML document. Now after writing the commands, save the page. Now minimize the page application and open your file. As this is my file, just double click. The output will be look like this. As in my page, I have written only my page, so you can see here only my page. So this way you can create a simple HTML file using text editor. HTML text. HTML markup text are also called HTML text. These are denoted the various elements in an HTML documents. HTML text are keywords enclosed in a pair of angular brackets that lesser than and greater than symbol. These tags are usually paired, for example, HTML and HTML. The first one is known as opening tag and the second one is known as closing tag. There are two types of HTML tags. They are container and anti-tag. The tag which have closing or closed tags are known as container tag.
The tag which say both opening and closing are known as container. And empty, the tag which say only the opening one but no close are known as empty tag. And HTML element, everything between the starting tag and the closing tag is known as HTML element. For example, B, click to start, B close. So from opening B till closing B, this everything is known as an element. HTML tag attributes. Attributes gives more power to the tags. Attribute gives some special power to the tags. Attributes of a tag provide additional information about the HTML elements. They are always written by giving a space after the tag name. Attribute appears as the attribute name followed by an equal sign. And then attribute value. Attribute value should be enclosed within double quotes. Though some browsers allow only single quotes, but it is a good practice to write the values within double quotes. Now, the structure of an HTML document. Monster Math presents Addition Below 10. Okay. ओके, सो HTML समझ में आया क्या 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 होता है? कुछ कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, देखो HTML बेसिकली क्या होता है? हाँ, वेब पेजेस को हम क्या कहते हैं? HTML कहते हैं। अब हम देखते हैं HTML क्रिएट कैसे करना है। एक्चुअली क्या है, हमारे सिलेबस में CSS है, ठीक है? तो CSS करने से पहले हमको HTML के बारे में पता होना चाहिए कि HTML कैसे डिजाइन करते हैं। अच्छा, एनिमेटेड लॉग ऑन टू एनिमेटेड CC नहीं हुआ ना हमारा चैप्टर? लॉग ऑन टू एनिमेटेड CC नहीं हुआ? No, ma'am. अच्छा, ठीक है। ओके, इन स्टाइल। अच्छा, HTML पेज कैसे डिजाइन करते हैं पहले वो देखेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले देखेंगे HTML, ठीक है? सो HTML क्या है? ये हमारा टैग है, ठीक है? HTML इज अ टैग। ओके ओके, नेक्स्ट इसका ओपनिंग टैग होगा हेड, HEAD हेड, ठीक है? TITLE टाइटल, टाइटल लिख दिया, जैसे सपोज माय फर्स्ट पेज। ओके, जो अच्छा टैग्स के ये क्या होते हैं? दैट इज अ HTML हेड, इसको क्या कहते हैं? हम टैग कहते हैं। ओके फाइन। और ये क्या करता है कि इसमें टैग क्या होता है? बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक टैग जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, और एक टैग जिसमें सिर्फ ओपनिंग होता है, ठीक है? तो यदि ये टाइटल ओपन हुआ है तो टाइटल क्या है? यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ेगा, /TITLE टाइटल। फाइन, समझ में आया? देन हेड क्लोज, HEAD हेड क्लोज। द नेक्स्ट बॉडी, BODY बॉडी, यहाँ पे लिख दिया हेलो क्लास 7th B। ओके, देन बॉडी क्लोज, बॉडी टैग क्लोज। अच्छा, इसने एक चीज और बोली थी, HTML केस सेंसिटिव है या नहीं है? कोई बता सकता है? Ma'am, नहीं. नहीं है, No, ma'am. ठीक है। और इसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, स्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ठीक है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, इसमें कुछ प्रोग्राम नहीं लिखना रहता। इसमें बेसिकली कुछ टैग पहले से डिफाइंड रहते हैं, उस टैग का हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो सेव एज, ये मैंने सिंपल नोटपैड है, उसमें मैंने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है? अब मैंने इसमें लिखती हूँ क्लास 7th B। ओके, फाइल का नेम दिया .html, .html देना जरूरी है, अदरवाइज ये जो फाइल है सिंपल नोटपैड वाली सेव हो जाएगी, HTML सेव नहीं होगी। डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, सेव, ठीक है?
आप देखते हैं क्लास 7th के नाम से कोई फाइल बनी है? ये रही क्लास 7th, दिख रही है सबको? 7th भी Yes, दिख, ma'am. मैं इसको ओपन करूं? ठीक है, वेट, ओपन हो रहा है। ये ओपन हो रहा है, देखो, हेलो क्लास 7th भी। समझ में आया सबको? माय फर्स्ट पेज, ये टाइटल कहाँ पे आ गए? यहाँ पे आ गया माय फर्स्ट पेज। फाइल का नाम क्या आ गया? क्लास 7th बी डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल फाइल क्रिएट हुई। समझ में आया व्हाट इज एच टी एम एल? Yes, ma'am. कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? अच्छा, अब इसमें, अब हम थोड़ा सा और इसको ओपन करके थोड़ा सा और इसमें करते। अच्छा, इसको मुझे वापस नोटपैड को ओपन करना है। सपोज ये नोटपैड मैंने बंद कर दिया, इसको मैं बंद कर देती हूँ। मुझे वापस इसको नोटपैड में ओपन करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे, यहाँ पे आ गया नोटपैड। आप नोटपैड में इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें लिखती हूँ, अब मुझे सपोज इसमें बैकग्राउंड कलर क्या करना है? बीजी कलर। मुझे इसका कौन सा कर दूं? ब्लू कर दूं? ब्लू कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस, देखते हैं कैसे किया है। ये देखो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या था? ये क्या होता है? बीजी कलर। बीजी कलर मीन्स बॉडी का मतलब बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ब्लू। अब ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की क्या होती है? एक वैल्यू होती है। टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी क्या होती है? वैल्यूज होती है। समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, एच टी एम एल, दिस इज कॉल्ड द टैग। इनकी कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और उसको हम लिखेंगे कैसे? बॉडी बीजी कलर ब्लू, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। हेड, माय फर्स्ट टाइटल। टाइटल यदि हमें देना है, हेड टाइटल, ये बेसिक्स है एच टी एम एल के जो लिखना है। अच्छा, अब मोर ऑन सी एस एस, इसमें पेज नंबर 107 पे देखेंगे। CSS cascading style sheet make it easier to enhance the look of the different elements on the web pages. It is a style sheet that provides a set of style rules for defining the layout of HTML documents. अच्छा, अब जो HTML documents होते हैं, जिससे हमें बहुत अट्रैक्टिव से ये HTML documents दिखते हैं ना, वेबसाइट्स बहुत अच्छी अच्छी दिखती हैं, तो वो उसको डिजाइन कौन करता है? CSS करता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, हम तो सिंपल पेज डिजाइन कर देते, मतलब उस लैंग्वेज के थ्रू, मतलब इस कास्केडिंग स्टाइल शीट के थ्रू हम लोग उसको, उसका लेआउट अच्छा दे सकते हैं, डिजाइनिंग अच्छा से दे सकते हैं। इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर स्कीम और प्रेजेंटेशन ऑफ द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट होता है उसका प्रेजेंटेशन बताता है। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट द बेसिक ऑफ HTML एंड CSS। दिस चैप्टर विल फर्दर एनहांस योर नॉलेज एंड स्किल्स ऑन CSS। भाई, लास्ट क्लास में आई डोंट थिंक सो कि HTML पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो इन लोगों ने थोड़ा सा एडवांस दे दिया है तुम लोगों को। Inline style is one of the method used to apply CSS on the element of website. In this method, style declaration देखते हैं कैसे करता है इसको। ठीक है, तो ये इसमें कुछ कोडिंग दी हुई है, वो हम करके देखते हैं। यूज ऑफ स्टाइल शीट द डिक्लेयर। हम्म, ओके, इसमें क्या लिखा है? ये कोडिंग कर रन करके देखते हैं हम लोग। न्यू में गए, सबसे पहले हम देखेंगे HTML। ठीक है, नेक्स्ट हेड, HEAD हेड। अब हेड में क्या लिखा है? हमने टाइटल लिख दिया, TITLE टाइटल। क्लोज, इन लाइन मेथड, ठीक है, TITLE टाइटल, GAD हेड क्लोज। ओके, BODY बॉडी, ठीक है, वी आर यूजिंग इनलाइन स्टाइल, मतलब एक लाइन से आएगी, ठीक है, इनलाइन स्टाइल हेयर, फाइन। देन
HR हॉरिजॉन्टल, HR एक टैग है, स्टाइल उसका हमने एट्रीब्यूट दिया है इक्वल्स टू विथ, फिफ्टी परसेंट तक, ओके। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, हाइट 10, ओके। मीन्स ओके, एचआर क्या है? एचआर एक हमारी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट से पहला स्टाइल दे दिया, विथ दे दिया उसका, फिर 50% उसका मतलब बता दिया कि विथ कितनी 50% रहेगी, बैकग्राउंड कलर कितना रहेगा इसका, ग्रीन रहेगा, और हाइट कितनी रहेगी 10, ओके। अ सिंपल है। चलो बस इतना ही करके देखते हैं। देन बॉडी BODY बॉडी क्लोज HTML क्लोज। अच्छा, जो HR टैग है दिस इज द ओपनिंग टैग, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है। सेव, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। लाइन लाइन स्टाइल डॉट HTML, देखें ये सेव हो गया, लाइन स्टाइल डॉट HTML। ये एक लाइन सी क्रिएट हो गई, ठीक है। सो हमने क्या किया, ये लाइन इसमें क्रिएट किया। समझ में आया सबको? एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? No, No, ma'am. ma'am. ठीक है, तो No, ये क्या ma'am. किया? ओके, रुद्र समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, ऋषिका, Ma'am, ऋषिका मैम एक हाँ बोलो। यस मैम जो हाँ रुद्र, लाइन्स ये परमानेंटली बन गई है कि टेम्परेरी है? नहीं वो हमने पेज डिजाइन किया, उसमें हमारा एक लाइन क्रिएट हो गई। अब HTML पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, साउंड भी ऐड कर सकते हैं, जब आप क्लिक करो तो साउंड आए, ठीक है, या आप फिर इमेजेस भी कर सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट है वो W3C करके है, W3C, इसमें हम वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं, HTML, ठीक है। इसमें कुछ कुछ वेरिएशंस करके देख सकते हैं, HTML ट्यूटोरियल, इजी लर्निंग HTML पेज कैसे क्रिएट किया है, ठीक है। H1 हेडिंग के लिए होता है, P टैग होता है पैराग्राफ के लिए होता है, बहुत सारे टैग्स हैं इसमें, इनबिल्ट टैग है पहले से बने हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट्स, इसमें CSS भी दिया हुआ है। हाँ, और किसी को कुछ डाउट है क्या? इनलाइन बाय यूजिंग अ स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, इंटरनल स्टाइल लिंक, एक्सटर्नल, ठीक है। मैम H1 का क्या मतलब है इसमें? हेडिंग, हेडिंग, Yes, मैम. एक सेकेंड और देखते हैं इसमें, मैं पी का मतलब पैराग्राफ, राइट पैराग्राफ, अब ब्लू हेडिंग, ठीक है, करके देख लेते हैं इसको। जो HR था वो हॉरिजॉन्टल के लिए था, HR जो था ना, ये HR दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, ब्लू हेडिंग आ गई, रेड पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो H1 स्टाइल, इसमें हमने एट्रीब्यूट क्या दिया,
स्टाइल कलर ब्लू करके दे दिए, स्टाइल एट्रीब्यूट कलर रेड, और उस पैराग्राफ में लिख दिया। ठीक है, अच्छा ओके, इसमें क्या है, चलो अभी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 107 ओपन करो। ठीक है, अच्छा अपन इसमें कुछ कुछ करके देखते हैं। स्टाइल समझ में आया, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करता है, इनलाइन स्टाइल इज वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस on the element of web pages. In this method, style declaration is given with each individual element with the help of style attribute. ठीक है, आप स्टाइल दे सकते हो। मैम। सैरम बेटा, अब कौन आया भाई, अभी आया क्या कोई? जैनब तुम यस लेट मैम। क्यों, लेट क्यों? मैम। मैम मेरे को पता नहीं था इसलिए। मैम लास्ट क्लास में भी बोला था मैंने, पता नहीं था, हर बार पता नहीं था तुम बोलोगे क्या? तो वो टाइम टेबल भी चेंज हो गया है, शायद न्यू टाइम टेबल आया तुम लोगों का, उसमें देख लेना। सैरम मैम। सही राम, ठीक है, एक बार शायद मॉडिफाई करके भी शायद दिया होगा, या देख लेना। अभी वेडनेसडे को मैंने पहले बोला 11 बजे क्लास रहेगी तुम लोगों के। ठीक है, ओके। सो इनलाइन स्टाइल क्या करता है, इनलाइन स्टाइल, दिस इज नॉट एन इफेक्टिव यूज ऑफ स्टाइल शीट एज द डिक्लेरेशन इज ओके। सो टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन, cascading with text property is a cascading style sheet provide various formatting options to style the text in a web pages. In the following section you will learn about the various text property and their description. This property is generally applied to a block of text, heading, paragraph, etc. It is used to set the horizontal alignment of the text inside the block. Text alignment value, syntax क्या रहेगा देखते हैं। Text decoration where value is equals to left, okay। अब सपोज इसमें मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं H1R1 कॉले को। ठीक है, अब HTML टैग का कोई यूज करते हैं, सपोज मैंने पैराग्राफ वाला टैग यूज किया। ठीक है, उसमें मैंने text text align align equals to वैल्यू। वैल्यू क्या रहेगी इसकी, वैल्यू हम क्या दे सकते हैं, लेफ्ट दे सकते हैं, लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है, इसमें पैराग्राफ लिख देती हूँ, हेलो पैराग्राफ क्लोज, कंट्रोल एस। अच्छा लेफ्ट से आया, ठीक है, अभी मैं राइट लिखती हूँ इसमें, इसकी वैल्यू में कर देते हैं राइट। समझ में आ रहा है सबको, RIGHT राइट। राइट में क्यों नहीं आया? ओके, हाँ देव, राघव बोलो, राघव बोलो। मैंने कुछ नहीं बोला। हैंड रेज करा है तुमने? वो गलती से हो गया था। ओके, ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर। ओके, तुम लोग को डायरेक्टली CSS दे दिया ना, हेड। ठीक है, चलो एक और चीज करके देख मैम लेते हैं। हाँ बेटा, मैम आपने मैम 7 चैप्टर के मैम ट्रू फॉल्स और मैम वो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करा है। वो आप करोगे बेटा, आपको खुद करना है।
देखो इस कोड को देखेंगे, इस कोड को समझो। सबसे पहले क्या किया हमने, HTML कोड ओपन किया, उसके बाद हेड कोड किया, हेड कोड का यूज किया, ठीक है, हेड टैग का यूज किया, उसके बाद स्टाइल टैग यूज किया। जो स्टाइल टैग है वो किसका टैग है, हमारे CSS का टैग है, ठीक है। दो चीजें अलग अलग है, HTML और CSS। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और HTML पेज से क्या होता है, हम सिंपल पेज डिजाइन करते हैं। CSS से क्या होता है, उस पेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसे कलर ब्लू रेड ग्रीन इस तरीके से करते हैं। HTML में भी कर सकते हैं, बट सी यदि ये पेज डिजाइन है, सपोज ये पेज वेबसाइट का डिजाइन है, तो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, HTML और CSS, ठीक है। तो H1 कलर हमने क्या दे दिया, ब्लू। फॉन्ट कलर जो भी हम दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली जो हमारा वो रहता है, एरियल टाइम रोमन्स वो दे सकते हैं। फॉन्ट साइज हमने 300% तक दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टाइल हो गया। पी कलर रेड, फॉन्ट फैमिली कोरियर, ये हमने इस तरीके से पी का हमने एट्रीब्यूट का डिफाइन कर दिया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इस पी टैग को यूज कर दिया। समझ में आया? चलो एक बार फिर से हम करके देखेंगे इसको, न्यू वाले में बनाते हैं। क्या किया मैंने, डोंट सेव। पहले मैंने लिखा HTML, ठीक है, एच, ध्यान से समझना, हेड, ठीक है। इसके बाद मैंने STYLE स्टाइल टैग का यूज किया है, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर मैं क्या लेती हूँ, एक मैं H1 करके एक टैग लेते हैं, जिसकी हम प्रॉपर्टी डिजाइन कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी यहाँ से एट्रीब्यूट देख लेते हैं, कलर ब्लू, ठीक है। मतलब H1 का कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, COLR कलर इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है। यही डिजाइन ऐसे तय करते हैं, इक्वल्स टू नहीं आएगा, ठीक है। P1, P1 नहीं, P खाली कोई P पैराग्राफ के लिए होता है, H1 हेडिंग के लिए होता है, ठीक है। ठीक है, इसका हम कर देते हैं कलर रेड, ठीक है। अब H1 टैग का यूज करते हैं। H1 टैग का मैंने यूज किया, हेलो दिस इज माय, हेलो क्या लिखूं, हाय हाउ आर यू ऑल, मैंने यहाँ पे H1 का यूज किया, H1 क्लोज, ठीक है। अब एक P टैग यूज किया, P क्लोज, इसमें मैंने लिखा दिस इज माय FIRST फर्स्ट HTML पेज, अच्छा लास्ट में मुझे, अच्छा भाई हेडिंग, हेड को क्लोज करना है, सो ओके, बॉडी टैग तो ऑन करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी में ये सब लिखा जाता है। बॉडी टैग, बॉडी क्लोज, ठीक है, देन HTML क्लोज, जो स्टार्ट होगा वो क्लोज होगा। इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे, पेज 3 डॉट HTML इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखते हैं, चेक करते हैं, माय पेज 3, कुछ नहीं आया, कुछ कहीं गलत किया है हमने, देखते हैं क्या हुआ है। ओपन विथ नोटपैड, HTML ओपन, हेड क्लोज नहीं किया, अच्छा स्टाइल भी क्लोज नहीं किया है, स्टाइल को स्टार्ट किया बट स्टाइल को क्लोज नहीं किया। यहाँ पे पहले हम हेड क्लोज करते हैं, GAD हेड क्लोज, फिर उसके बाद STYLE स्टाइल क्लोज, ओके, कंट्रोल S। क्योंकि स्टाइल क्लोज नहीं किया तो इसलिए आया नहीं, बॉडी से पहले करना पड़ेगा ये। बॉडी स्टार्ट, बॉडी ऑफ
GAD head, GAD head close, STYLE style close, Control S. ओके, देखते हैं फिर से रिफ्रेश करके. फाइन, समझ में आया? फिर से बताऊं, जल्दी बोलो. यस मैम. आगे समझ में? यस मैम. मैम नो. नो क्या? मैम मुझे समझ नहीं आया. मैम मुझे भी नहीं आया. किसको समझ में नहीं आया? मैम अनिल. रुद्र. ओके, देखो बेटा, इसमें क्या किया हमने कि पहले HTML टैग्स हमने देखे थे. विच चैप्टर इज दिस? भाई प्राची को बता दो, लेट आई है वो, अभी क्लास खत्म होने वाली है और पूछ रही है विच चैप्टर इज दिस. ओके, तो HTML हेड, ठीक है, हमने क्या किया, HTML टैग का यूज किया, हेड टैग का यूज किया. ये क्या है? HTML के टैग है. स्टाइल टैग जो है वो किसका टैग है? CSS का टैग है. इसमें हमने H1 क्या था? हमारा एक टैग है, मतलब उसकी हमने प्रॉपर्टी बता दी कि उसका कलर क्या रहेगा, ब्लू रहेगा, और इसका पी कहीं पर भी हम यूज करेंगे पी टैग का, तो उसका कलर क्या रहेगा? रेड रहेगा. ओके, देन हेड क्लोज किया, स्टाइल को हमने क्लोज कर दिया. हाँ बोलो रुद्र. मैम ये जो आपने पी के बाद में ये जो ब्रैकेट लगाया उसकी जगह नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं ना? नहीं, ये कैसकेडिंग स्टाइल शीट का बताने का तरीका है. कलर रेड, इस तरीके से हम उसको लिखना है. ठीक है, ओके मैम. है ना? मैंने ये तुम लोगों को दिया हुआ है ना, इसमें से एक बार और पढ़ लेना. CSS कलर कैसे यूज करते हैं, ये इसके बारे, इसमें W3C स्कूल में एक बार और पढ़ लेना. कहाँ गया? ठीक है, इसको कैसकेडिंग स्टाइल शीट लिखने का ये तरीका होता है. मतलब H1 टैग का हमने क्या कर दिया, कहीं पर भी हम H1 टैग यूज करेंगे तो वहां पे उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू आ जाएगा. अब सपोज मैं एक और बार H1 टैग यूज करती हूँ, H1, इसका मैं लिख देती हूँ हेलो. हेलो हेलो बहुत हो गया, कुछ और लिखते हैं. क्या लिखूं? बोलो साई जल्दी. राम. साई राम लिख देते हैं. गुड, साई राम. कंट्रोल एस. इसको करने के बाद एक बार सेव भी करना है. ये देखो, साई राम भी क्या आ गया? ब्लू कलर का आ गया. मुझे बार बार ब्लू कलर नहीं लिखना पड़ा. ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे मैं H1 यूज करूंगी उसका कलर क्या आ जाएगा? ब्लू आ जाएगा. कहीं पर भी P यूज करूंगी पूरे पेज में, उसका कलर क्या आ जाएगा? रेड आ जाएगा. हेड क्लोज किया, स्टाइल क्लोज किया. अब क्या किया हमने? बॉडी टैग का यूज किया. बॉडी टैग क्या करेगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए यूज होगा. ठीक है, बॉडी टैग के अंदर सारे जो भी कंटेंट्स हैं हम कहाँ लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं. ये पूरा पेज के जो भी आप डिजाइन करोगे, इमेजेस लिखोगे, साउंड डालोगे, जो भी करोगे वो किसके अंदर आएगा? बॉडी टैग के अंदर आएगा. H1 ओपन, H1 क्लोज, P स्टार्ट, P क्लोज, H1 स्टार्ट, H1 क्लोज, देन बॉडी टैग क्लोज और HTML टैग क्लोज. खत्म. तो ये आपका क्या हो गया? एक सिंपल पेज डिजाइन हो गया. अच्छा, अभी होमवर्क क्या है? सब पेज नंबर 107 और 108 पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत HTML के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे. ठीक है, यस मैम. HTML इंट्रोडक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे. HTML इंट्रोडक्शन कैसे होता है. ठीक है, ये कुछ टैग्स हैं, इसके बारे में पढ़ोगे W3C स्कूल में. ओके, पेज नंबर 107 और 108 पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में मैं सब बच्चों से पूछूंगी. ठीक है, एनी डाउट? नो मैम. ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? रेणुका, समझ में आ रहा है तुमको? यस मैम. है ना? थोड़ा थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो. HTML होता क्या है? ठीक है, HTML बेसिकली किस लिए यूज होता है? जब भी हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? HTML का यूज करते हैं. हाँ रुद्र बोलो. मैम अगर मैं मैम कलर स्टाइल जो कलर था मैम उसकी जगह उसमें कलर की जगह मैम ब्लैंक रख दे तो? कलर की जगह ब्लैक रखोगे तो कोई कलर ही नहीं आएगा. ठीक है, आपको कलर देना है. आप वो कंसेप्ट समझो कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं. ठीक है, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो रुद्र बोलो. मैम जैसे कि वो कलर आपने बोला था कलर के बाद आपने कलर लिखे थे रेड तो मैम उसमें हम ब्लैंक रख दे तो? ब्लैंक ना, हाँ मैं समझ रही हूँ, तो कोई कलर नहीं आएगा वो.
कि कलर ही नहीं आएगा, वो सिंपल लिखा हुआ हम टेक्स्ट लिखेंगे ब्लैक। कलर में आएगा, क्या? जो भी हम लिखेंगे वो कौन से कलर में आएगा? वो ब्लैक कलर में आएगा। ओके मैम। ठीक है, यदि आप उसमें कोई कलर नहीं दोगे तो वो ब्लैक कलर में आएगा। अच्छा, और कोई बच्चा, किसी को डाउट? एनी डाउट? नो डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, ठीक है। सो HTML पेज बेसिकली किस लिए होता है? वेबसाइट डिजाइन करने के लिए हम HTML पेजेस का यूज करते हैं, और उसमें जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन सी होती है? HTML होती है। तो उसको HTML बहुत बार बोल दिया, तो अब तुम लोग एक काम करना, थोड़ा सा WPC स्कूल में HTML के बारे में पढ़ना, और ये 2 पेजेस जरूर पढ़ना। एक्चुअली क्या आपको CSS डायरेक्टली है, CSS डायरेक्टली ना होके पहले HTML पढ़ना था, फिर CSS पढ़ना था। तो कोई बात नहीं, आप लोग HTML साइड बाय साइड उसको पढ़ते रहो कि वो कैसे टैग यूज होते हैं, टैग किसको कहते हैं। ओके, फाइन। चलो साईराम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।